Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansera. I'm your teacher Muhammad Awais Kashmiri. Dear students, as you know that in previous lectures we have been discussing tenses, that what is tense, what are the basic concepts, their identification, helping verbs, form of verbs, and all these basics. So today I'm going to revise the previous lectures for you people, and then we'll move towards indefinite tenses because we have already done continuous tenses, perfect tenses, and perfect continuous tenses. So today we'll move towards indefinite tenses. So first of all, what is a tense? Tense is a form of verb which tells us time. Tense is a form of verb which tells us time. So as you know that there are five tensed forms, that first form, second form, third form, ing form, ses form. So what is first form? For example, go. Second form, went. Third form, gone. ing form, going. And ses form, goes. Then we discussed the basic concepts, that what do you mean by indefinite? Indefinite means which does not tell you about the definite time. What do you mean by continuous? Continuous means something in progress. What do you mean by perfect? And perfect means something has been completed recently. And what is perfect continuous? Perfect continuous means something in progress and something has been completed. Got it? So identification in Urdu we discussed in detail, helping verbs we discussed in detail, form of verb. So we are going to give them a look again. So first of all, we discussed continuous tenses and perfect tenses. So as you know that we memorize these tenses on our fingertips. This is the finger of indefinite tenses. This is continuous. This is perfect. This is perfect continuous. For example, present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So first of all, we discussed continuous tenses. So I am going to revise for you people that what is continuous. So continuous आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं. फॉर एग्जांपल, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो जा रहे हैं. Is, am, are the helping verbs, and ing form of the main verb is used in present continuous. So present continuous रहा है, रही है, रहे हैं. Is, am, are, ing. Then पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, वो जा रहा था, वो जा रही थी, वो जा रहे थे. Then was and were are used as helping verbs, and ing form is used. As you know that in all the continuous tenses we use ing form. So past continuous रहा था, रही थी, रहे थे. Was, were, ing. Then future continuous रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. वो जा रहा होगा, वो जा रही होगी, वो जा रहे होंगे. Will be and shall be are used as helping verbs, and ing form is used as main verb. So future continuous रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Will be, shall be, ing. So I am repeating it. रहा है, रही है, रहे हैं. इज, एम, आर, ing. रहा था, रही थी, रहे थे. वॉज, वर, ing. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. विल बी, शैल बी, ing. So this is the finger of continuous. Then we move toward perfect and perfect, present perfect, past perfect, future perfect. As you know that the identification of present perfect is चुका है, लिया है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं, etc. And third form of the main verb is used in all the perfect tenses. Third form of the main verb in present perfect, has and have are used as helping verbs. So present perfect चुका है, लिया है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं. Has, have, third form. Got it? Then past perfect चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, etc. are the identification. For example, वो जा चुका था, वो जा चुकी थी, उन्होंने खाना खा लिया था, उन्होंने हाथ धो लिए थे. And had is used as helping verb in past perfect, and third form of the main verb is used. So past perfect चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे. Had, ing, sorry, had, third form. Had, third form. Had is used as helping verb. Then future perfect continuous. So future, in future perfect continuous,
चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिए होंगे। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल वो जा चुका होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा, वो बैठ चुकी होगी, उसने नाश्ता बना लिया होगा। एंड will have and shall have are used as helping verbs. Which will have and shall have are used as helping verbs in future perfect and third form of the main verb is used. So future perfect चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिए होंगे, will have, shall have, third form, will have, shall have, third form दो. So प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, लिया है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं, हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट चुका था, लिया था, चुकी थी, चुके थे, लिए थे, हैड, थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिए होंगे, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म. देन so this was the finger of continuous and this is the finger of perfect tenses. And dear students, as you know that this is the finger of perfect continuous tenses. So present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. डैश से रहा है या ता रहा है, वो सुबह से सो रहा है या वो सोता रहा है. ये है आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की. डैश से रही है, ती रही है, वो सुबह से सो रही है, वो नाश्ता बनाती रही है. डैश से रहे हैं, ते रहे हैं, वो शाम से खेल रहे हैं, वो खेलते रहे हैं. सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू. एंड helping verbs are has been and have been. Has been and have been and ing form is used as main verb because in all the continuous tenses we use ing form. Totally in 6 tenses we use ing form, all the continuous tenses. Okay, so main form is ing form. So डैश से रहा है, ता रहा है, डैश से रही है, ती रही है, डैश से रहे हैं, ते रहे हैं, हैज़ बिन, हैव बिन, ing. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. डैश से रहा था, ता रहा था, वो सुबह से सो रहा था, वो सोता रहा था. डैश से रही थी, ती रही थी, डैश से रहे थे, ते रहे थे. एंड हेल्पिंग वर्ब इज हैड बिन. हेल्पिंग वर्ब इज हैड बिन एंड ing form of the verb is used in past perfect continuous. So डैश से रहा था, ता रहा था, डैश से रही थी, ती रही थी, डैश से रहे थे, ते रहे थे, had been ing. Then future perfect continuous. डैश से रहा होगा, ता रहा होगा, वो शाम से मैच देख रहा होगा, वो मैच देखता रहा होगा. डैश से रही होगी, ती रही होगी, वो शाम से खाना बना रही होगी, वो खाना बनाती रही होगी. डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे, वो कल से अखबार पढ़ रहे होंगे, वो अखबार पढ़ते रहे होंगे. Then helping verb is will have been and shall have been. Will have been and shall have been. This is the knuckle. Okay, will have been and shall have been. So and ing form. डैश से रहा होगा, ता रहा होगा, डैश से रही होगी, ती रही होगी, डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे. Will have been, shall have been, ing. Got it? So I am revising this perfect continuous. डैश से रहा है, ता रहा है, डैश से रही है, ती रही है, डैश से रहे हैं, ते रहे हैं. हैज़ बिन, हैव बिन, ing. डैश से रहा था, ता रहा था, डैश से रही थी, ती रही थी, डैश से रहे थे, ते रहे थे. हैड बिन, ing. डैश का मतलब कोई टाइम होता है, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बजे, 5 बजे. ओके. डैश से रहा होगा, ता रहा होगा, डैश से रही होगी, ती रही होगी, डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे, will have been, shall have been, ing. Got it? So now we move towards indefinite tenses. First of all, present indefinite tense. This is the finger of indefinite. Okay, present indefinite, past indefinite, future indefinite. So what do you mean by indefinite? Indefinite means which does not show us definite time. And identification in Urdu, present indefinite. Okay, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, वो जाता है, वो जाती है, वो जाते हैं, मैं जाता हूँ. Got it? So this is the identification in Urdu. ये हमें कोई definite time नहीं बताता.
मैच 8 बजे शुरू होता है, अब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो सम टाइम ये फ्यूचर को भी मेंशन करता है। सो ये हमें डेफिनेट टाइम नहीं बताता, इसीलिए हम इसे इनडेफिनेट कहते हैं। मेन वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है या एस ई एस फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। जिस तरह गो फर्स्ट फॉर्म है और गोज़ ई एस फॉर्म है। सो अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि कहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कहाँ पे एस ई एस फॉर्म यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डू रिमेंबर, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आर सिंगुलर नाउन, हम इनके साथ एस आर ई एस फॉर्म यूज़ करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का क्या मतलब है? आपने ऑलरेडी प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ही, शी, इट, ही, शी, इट, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। और सिंगुलर नाउन का क्या मतलब है? कोई एक नाम, अली। गॉट इट? ही, शी, इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है। जब हमारे पास ये केसेस आएंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे हम एस की एडिशन करेंगे और कहाँ पे ई एस की एडिशन करेंगे। सो याद रखें हमेशा, जो वर्ड एंड हो, जो वर्ड एंड हो ओ पे, जेड पे, एक्स पे, एस पे, एच पे, सी एच पे या एस एच पे, जो वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट्स पे, इन अल्फ़ाबेट पे एंड करें, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है गो। अब कौन सा वर्ड है जो ओ पे एंड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल गो, गो किधर एंड होता है? ओ पे ना, तो इसके साथ हम ई एस लगा लेंगे, गोज़। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास है वर्क, देखें ये किस पे एंड होता है? के पे ना, ठीक है, तो इसके साथ हम सिर्फ एस लगा लेंगे। इनमें तो नहीं है के, तो हम इसके साथ सिर्फ एस लगा लेंगे। सो जो वर्ड्स ओ पे, जेड पे, एक्स पे, एस पे, एच पे, सी एच पे, एस एच पे एंड हों, उनके साथ हम ई एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस लगा लेंगे। सो सबसे पहली बात, आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आते हैं और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस ई एस फॉर्म यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हम डू या डज यूज़ करते हैं वाइल मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। गॉट इट? सो डू और डज किसके साथ यूज़ होते हैं? डू बाकी सब के साथ यूज़ होते हैं और डज यही थर्ड पर्सन सिंगुलर और एस ई एस फॉर्म वाले वर्ब्स के साथ हम डज यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? मतलब जहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या सिंगुलर नाउन होगा, फिर हम नेगेटिव में डज यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन जब हम डज यूज़ करेंगे फिर मेन वर्ब से हम उसके साथ एस ई एस हटा लेंगे। ये आगे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब आप एग्जाम्पल को देखें। हम खेलते हैं, वी प्ले। ओके, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले। अगर इसकी जगह होता वो खेलता है, ठीक है, अगर होता वो खेलता है तो फिर क्या होता? ही प्लेज। अब देखें हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ गया है ना, ही, तो हमने प्ले वर्ब यूज़ किया और उसके साथ हमने एस लगा लिया, क्योंकि वाई यहाँ पे सिर्फ एस यूज़ होगा। सो हमने इसके साथ एस की एडिशन कर ली। वो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब ऊपर मैंने आपको एक बात बताई कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे और डज यूज़ करेंगे फिर मेन वर्ब्स के साथ जो है वो एस हटा लेंगे, क्योंकि वो एस ई एस की फॉर्म में डू के साथ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले। ओके, सो अब अगर हम इन रूल्स को फिंगर टिप्स पे देखें तो क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ फर्स्ट फॉर्म, डू डज और डू डज फर्स्ट फॉर्म। ता है, ती है, ते हैं, डू डज फर्स्ट फॉर्म। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनेट। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनेट वाला ये नकल है। अब इस पे जो रूल्स हमने पढ़ने वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। इन आइडेंटिफिकेशन इनके उर्दू में इन जुमलों के आखिर में आते हैं अलफ, छोटी ये या बड़ी ये। वो गया, वो गई, वो गए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है डिड, सारे प्रोनाउंस और नाउन के साथ, लेकिन ये मोस्टली हम नेगेटिव बनाते हुए ही यूज़ करते हैं। मेन वर्ब इसमें जो होगा वो सेकंड फॉर्म होगी मेन वर्ब की, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड,
सेकंड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हमारे पास ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, ओके। सो फिर मेन वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। गॉट इट। सो क्या रूल्स है हमारे पास? अलफ छोटी ये बड़ी ये, ठीक है, अलफ छोटी ये बड़ी ये और डिड सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अहमद ने खाना खाया, अहमद एट मील, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ की। क्लियर हो गया? अहमद एट मील। नेगेटिव जब हम बनाएंगे अहमद डिड नॉट ईट मील, अब यहाँ डिड नॉट हमने यूज़ कर लिया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो फिर हमने एट की फर्स्ट फॉर्म ईट यूज़ कर ली। अहमद एट मील, अहमद डिड नॉट ईट मील, डिड अहमद ईट मील। क्लियर है? अहमद ने खाना खाया, अहमद एट मील, अहमद ने खाना नहीं खाया, अहमद डिड नॉट ईट मील। क्या अहमद ने खाना खाया? डिड अहमद ईट मील। सो अगर फिंगर टिप्स पे हम देखें तो क्या हो जाएगा? ये अलफ छोटी ये बड़ी ये, डिड सेकेंड फॉर्म। क्लियर? नाउ वी मूव टूवर्ड्स फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। सो गा गी गे, दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू। उर्दू में अगर ये सेंटेंसेस आपके पास आएँ तो आप कैसे पहचानेंगे? ऐसे जुमले जिनके आखिर में आते हैं गा गी गे। वो गाना गाएगा, वो गाना गाएगी, वो गाना गाएंगे। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? विल और शेल इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ होते हैं। शेल आपको मैंने बताया था हमेशा जहाँ भी आपके पास आए और वी आएगा तो आप शेल को यूज़ करेंगे, इसके अलावा बाकी सब प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ आप विल को यूज़ करेंगे। क्लियर? सो मेन वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। अगर हम थर्ड नकल को देखें इस फिंगर के तो क्या आता है हमारे पास? गा गी गे, गा गी गे, विल शेल फर्स्ट फॉर्म, विल शेल फर्स्ट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ेगी, शी विल रीड। अगर यहाँ होता मैं पढ़ूंगा आई शी विल रीड, अगर यहाँ होता मैं पढ़ूंगा आई शेल रीड हो जाता। ओके, क्योंकि आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं। वो पढ़ेगी, शी विल रीड। वो नहीं पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड। क्या वो पढ़ेगी? विल शी रीड। क्लियर? सो these were indefinite tenses that ता है, ती है, ते है, do does फर्स्ट फॉर्म, ses फॉर्म, अलफ छोटी ये बड़ी ये, डिड सेकेंड फॉर्म, गा गी गे, विल शेल फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब हम इन इनडेफिनेट टेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो। सो क्या होगी इसकी इंग्लिश? ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है ना, यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था। ओके, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, डू यू रीड न्यूज़पेपर। तुमने अखबार पढ़ी, अब ये है पास्ट इंडेफिनेट, तो क्या होगा? यू रेड न्यूज़पेपर। रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड होती है, स्पेलिंग यही होते हैं, यू रेड न्यूज़ पेपर। और तुम अखबार पढ़ोगे, यू विल रीड न्यूज़ पेपर। एक और सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। हम सबक याद करते हैं, वी लर्न लेसन। अगर नेगेटिव बनाएं, वी डू नॉट लर्न लेसन, डू वी लर्न लेसन। हमने सबक याद किया, वी लर्नड सेकेंड फॉर्म ऑफ लेसन। अगर नेगेटिव बनाएं, वी डिड नॉट लर्न लेसन। इंट्रोगेटिव बनाएं, डिड वी लर्न लेसन। ओके, हम सबक याद करेंगे, वी शैल फर्स्ट फॉर्म, लर्न लेसन, वी शैल नॉट लर्न लेसन, शैल वी लर्न लेसन। Okay, so these were indefinite tenses. Now I am going to repeat all the tenses for you people. First of all, indefinite, ता है, ती है, ते हैं, do does first form, ses form, अलफ छोटी ये बड़ी ये, did second form, गा गी गे, will shall first form, then रहा है, रही है, रहे हैं, is am or ing form, रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर ing, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल बी ing। देन चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, हैड थर्ड फॉर्म, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म। देन
डैश से रहा है ता रहा है, डैश से रही है ती रही है, डैश से रहे हैं ते रहे हैं, हैज़ बिन हैव बिन आईएनजी। डैश से रहा था ता रहा था, डैश से रही थी ती रही थी, डैश से रहे थे ते रहे थे, हैड बिन आईएनजी। डैश से रहा होगा ता रहा होगा, डैश से रही होगी ती रही होगी, डैश से रहे होंगे ते रहे होंगे, विल हैव बिन शैल हैव बिन आईएनजी। So these were your tenses. So when we were discussing all other tenses, so I hope you are quite clear with all these tenses, and now you are aware of all the concepts of tenses. I'll give link in description. Okay, I'll give link of previous lectures in description. Now what's your homework? Your homework is following sentence. सेंटेंस नंबर 1, वो भागता है। आपने इसको 3 में चेंज करना है, वो भागा वो भागेगा। मीन्स आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस भी इंग्लिश में बनाना है, पास्ट इंडेफिनेट का भी बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनेट का भी बनाना है, और साथ में इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल गए, हम स्कूल जाएंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के इंडेफिनेट बनाने हैं, साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना है। अली और अहमद फ़ुटबॉल खेलते हैं, अली और अहमद फ़ुटबॉल खेले, अली और अहमद फ़ुटबॉल खेलेंगे। क्लियर? मेरी बहन कपड़े धोती है, मेरी बहन ने कपड़े धोए, मेरी बहन कपड़े धोएगी। उस्ताद सबक पढ़ाता है, उस्ताद ने सबक पढ़ाया, उस्ताद सबक पढ़ाएगा। सो आई हैव मेड present indefinite and you have to change them in past indefinite and future indefinite, and then you have to translate them into English. Okay, thank you so much. Thank you for watching. If you have any problem, you can contact me.